and it has been done, it has been started with the aminoglycosides, जो कि आपको पहले डॉक्टर सलवा, मैडम सलवा जो है आपको पढ़ा चुकी है, ठीक है, right? Today I will briefly discuss with you about macrolides and about clindamycin and chloramphenicol, okay? First of all, you should know briefly about the synthesis steps of the protein in the bacteria. And as you know, the elements involved in the protein synthesis are ribosome, which with the 3 binding sites for the transfer RNA, the P, A and E. इस आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है? P peptidyl side chain, A acceptor side chain, and E ejection site. And second component is messenger RNA. This is the messenger RNA, and then transfer RNA, the coming which bring the new amino acid for the binding with the receptor sites. Okay? And the different messenger RNA codons, which are basically triplets of the 3 nucleotides, which code for the specific amino acids, are represented by dots, dashes, or straight lines. आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है? These are the codon. So the different messenger RNA codons, which are actually triplets of 3 nucleotides, and they are represented by dots on the messenger RNA. And the transfer RNA with the growing peptide chain consisting of, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि अमीनो एसिड नजर आ रहे हैं, T, L and V, जिसमें ये म्यू, लिसिन, ल्यूसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट नाम जो इसके साथ अटैच्ड हैं. It is attached at the P site. And then you can see the incoming transfer RNA. This is the incoming transfer RNA with the new amino acids, and it get attached to the A sites. ठीक है, तो ये इसके 3 elements हैं जो involved होते हैं in the protein synthesis of the bacteria, जो कि prokaryotes है, जबकि eukaryotes में ribosomes के जो structurally different होता है from the prokaryotes. That's why we can take the advantage of specific action on the mycobacterium. ठीक है, जो हम antibiotics लेते हैं, they have a specific effect on these mycobacterium, microorganism, and they will not affect the protein synthesis of the mammalian cells. तो जो आप human के अंदर protein synthesize हो रही है, उस पर कोई effect नहीं होगा. And this ribosome composed of 50S subunits and 30S subunits. ठीक है. Steps क्या होते हैं कि there is a incoming transfer RNA bind to the A site by the complementary base pairing. ठीक है, यहाँ पे अब ये जो base pairing है, ये complementary base pairing होती है. अगर wrong amino acid आएगा और wrong anticodon के साथ, it will not be attached to the codon of the messenger RNA. ठीक है. और next slide में आप देखो कि when this transfer RNA with the new amino acid get attached to the acceptor sites, the P site with the growing peptidyl side chain will transfer its peptide chain to this new coming amino acids. ठीक है, तो यहाँ पे peptidation होगी. So this process is called peptidation, and the enzyme involved is a peptidyl transferase. ठीक है, and this is the 50S ribosome. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि this first step में जो है ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हुई है. Then second step, this growing this new coming transfer RNA, now it get the peptide chain from the P sites, and the P site transfer RNA is now free. तो इसको आप कहते हैं this transfer RNA has no discharge. ठीक है, and next step फिर क्या होगा, this this transfer RNA now has to be translocated towards the P side. ठीक है, ताकि A side जो है वो फिर से free हो जाए for the incoming transfer RNA. How it get free? The ribosome move towards the next one codon, and then the whole process is repeated. This movement of the transfer RNA from the A side to P side is called
ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो ये जो दो मेन स्टेप्स हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ट्रांसलोकेशन, दे आर एक्चुअली ब्लॉक्ड बाय द antibiotics, macrolides, clindamycin, and the third one chloramphenicol. Okay? And all these have the same mechanism of action. Therefore, मैंने इसीलिए फिर इन तीनों एंटीबायोटिक्स को आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक ही लेक्चर में, कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज द सेम, ठीक है। अगेन दिस डायग्राम शोइंग के जो ट्रांसफर RNA with the growing peptide chains is translocated from the A side to the P side. इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसफर RNA विद द P चेन, पेप्टाइड चेन इसके साथ अटैच्ड है। ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें राइबोसोम 50S 30S और पेप्टाइड चेन ट्रांसफर RNA इज अटैच्ड। अब अगर रॉन्ग अमीनो एसिड है तो इट विल नॉट अटैच टू द A साइड, ठीक है। ओनली अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है एंड द कमिंग ट्रांसफर RNA विद द न्यू अमीनो एसिड इज मैचिंग विद द codon, it will attach to the A side, and the ribosome will move one codon ahead, and the whole process will start. ठीक है, इस तरह growing ये एक जो peptide chain बन जाएगी protein synthesize, it will be this place. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैक्रोलाइड्स, क्लोराम्फेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन, इनकी एक ही साइट है, दे बाइंड विद द 50S राइबोसोम। यहाँ पे आपको मैक्रोलाइड जैसे शो हो रहा है इन द येलो color, it will attach to the 50S ribosome and will inhibit the peptidation and then translocation from the A to P side, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं मैक्रोलाइड से, देन जो ट्रांसलोकेशन होनी है फ्रॉम द A side to the P side, that will also be blocked, ठीक है। What the macrolides name indicate, macro mean a big size, and it relates to the structure that this antibiotic have many membered electron rings to which one or more of the electron ring is attached to the deoxy sugars, like जैसे erythromycin है तो उसके साथ क्लेरिनोज और एक और शुगर जो है वो अटैच होती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम मैक्रोलाइड रखा गया। मैक्रोलाइड्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ three main antibiotics, and the fourth one is ketolides. Erythromycin, clarithromycin, which is telithromycin. इनमें जो सबसे older one है, the most about 50 to 60 year old is the erythromycin. और erythromycin जो है 1952 में develop हुई थी, and it was considered to be the important substitute of the penicillin. So जिन पेशेंट्स में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट आना शुरू होगी या एलर्जिक हिस्ट्री होगी तो दे वर देन प्रिस्क्राइब्ड रिथ्रोमाइसिन। तो रिथ्रोमाइसिन इज अ वेरी गुड substitute of the penicillin, and like penicillin it covers all the gram positive bacilli जो फोकाई भी हैं और रॉड्स भी हैं, ठीक है। and only limited effect against the gram negative like Neisseria gonorrhea and for the Haemophilus influenza, and a little bit effect on the Legionella and the Chlamydia. This erythromycin is different from the clarithromycin. अब clarithromycin का erythro से क्या difference है regarding spectrum? It has all the spectrum coverage of the erythromycin जो कि gram positive bacilli थे और foci थे, but additional it also have a effect against the जो Mycobacterium avium intracellulare and Mycobacterium leprae and Helicobacter pylori. तो ये तीन जो बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट क्लाइथ्रोमाइसिन जो है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट दीज एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। एंड ये बहुत ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जो डिफरेंसेस आउटलाइन कर रही हूँ इनके क्वेश्चंस आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर यू शुड बी एबल to reply all these questions like what is the difference between the spectrum of erythromycin and clarithromycin. Okay? Mechanism of action same है
और इनकी मेटाबॉलिज्म भी सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये लिवर में ही सारे मेटाबोलाइज होते हैं और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, वेयर एज एजिथ्रोमाइसिन है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जो और इसका एक मेन डिफरेंस है रिगार्डिंग एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, जैसे कि रिथ्रोमाइसिन आपको मैंने अभी बताया कि वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, वेयर एज एजिथ्रोमाइसिन इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव but more effective against the gram negative like Haemophilus influenza, Moraxella pneumophila, and Neisseria gonorrhea. And also it has a very excellent effect against the Toxoplasmosis gondii. इवन उसकी सिस्ट को भी किल कर देती है। ठीक है, तो ये इसका तीनों का मैं मोटा मोटा जो आपको बता रही हूँ डिफरेंसेस हैं इन द स्पेक्ट्रम, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और सेकंड इसका जो है रिगार्डिंग इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये रिथ्रोमाइसिन जो है ये जीआईटी डिस्ट्रेस ज़्यादा करती है, और ये रिथ्रो और क्लैरिथ्रो बोथ दे इनहिबिट द साइटोक्रोम P450-3A4, जिसकी वजह से दे हैव ड्रग इंटरेक्शन, दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ड्रग लाइक statins, colchicine and the other drugs which are metabolized by the cytochrome P453A4. Whereas this azithro is not an enzyme inhibitor, it will not inhibit the 3A4. ठीक है, ये इनका यहाँ पे भी डिफरेंस है। और एक और जो मेन डिफरेंस साइड इफेक्ट में आता है कि रिथ्रो एंड क्लैरिथ्रो दे बोथ prolong the QT interval and can cause the torsidi-pointis arrhythmias, whereas azithro do not prolong the QT interval. ठीक है, तो ये इनका कुछ जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको अभी से बता दिए। अब हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बट जो याद रखने की बात यह है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, और दूसरा ये कि these all these macrolides metabolize in the liver, and they excrete through the bile in the duodenum, where these macrolides may get into enterohepatic circulation. ठीक है, इनकी थोड़ी सी enterohepatic circulation भी होती है, and due to this enterohepatic circulation इनका level जो है वो circulation में थोड़ा सा increase कर जाता है, which causes nausea. जो nauseating feeling या GIT distress आता है इन macrolides के साथ, वो इनकी enterohepatic circulation की वजह से there is a slightly increased level in the circulation. ठीक है, तो ये बातें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। बाकी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अब देख लेते हैं इंडिविजुअली। लाइक अब रिथ्रोमाइसिन है, इट इज इनकम्प्लीट। अच्छा, और हाँ, एक और इनकी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ये है कि जो रिथ्रो है ये एसिड लेबाइल है, एसिडिटी में या एसिडिक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और फूड, क्योंकि फूड की प्रेजेंस में भी एसिड रिलीज होता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। वेयरएज जो क्लैरिथ्रो और एजिथ्रो हैं ये एसिड स्टेबल हैं, इनमें प्रेजेंस ऑफ फूड या एसिड का कोई इफेक्ट नहीं आता, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वेयरएज जो ये रिथ्रोमाइसिन है इसको चूंकि एसिड में एब्जॉर्ब नहीं होती तो इसको हम एंटाइकोटेड फॉर्म में जो है इसकी टैबलेट्स यूज करवाते हैं। ठीक है, ओके। So it is incompletely but adequately absorbed from the upper part of small intestine and inactivated by gastric acids, therefore disappear, they are dispensed as an enteric-coated tablet. ठीक है, और दूसरा ये कि इनकी हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है, वो भी उसकी रीज़न यही है कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन की वजह से। टैबलेट्स कैप्सूल इंजेक्शन फॉर्म में आप दे सकते हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल द सेलुलर कंपार्टमेंट एक्सेप्ट इन द ब्रेन। अब ये तीनों जो मैक्रोलाइट्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। ठीक है, दिस पॉइंट शुड आल्सो बी रिमेम्बर्ड कि जो मैक्रोलाइट्स हैं ये easily distribute हो जाता है in the all intercellular fluid, but they do not cross the blood brain barrier and the placental barrier. ठीक है, ये इनके important significant point है। एक और इनका ये है कि they get into the phagocytes cell, जो phagocyte cells हैं उनके अंदर ये enter हो जाते हैं। That's why phagocytic killing जो है
वो ज़्यादा इनके साथ होती है with the macrolide, especially azithro. Azithro is about 40% more accumulated within the phagocytes and causes the phagocytic killing of the microorganism. ठीक है, सारे के सारे phagocytes के अंदर चले जाते हैं, but azithro is about 40 times more than the blood concentration of the azithro. ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि ये सारे जो है ये लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं और बाइल से एक्सक्रीट होते हैं। सिमिलरली ये भी एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन इसका थोड़ा बहुत ये है कि अनचेंज फॉर्म में ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होती है, बट नीड नॉट टू बी रिड्यूस द डोज इन रीनल डिजीज। ठीक है, सेम मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बता दिया है कि रिवर्स द ट्रांसलोकेशन स्टेप plus transpeptidation step when there is a newly synthesized peptidyl transfer RNA molecule move from the acceptor site on the ribosome to the peptidyl। ठीक है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो इसकी मेन इम्पोर्टेंट है कि दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड कोकाई, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस, कॉरीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, ये सब नाम आपने याद रखना है। एंड वेरी लिमिटेड इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव लाइक एच इन्फ्लुएंजा एंड नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और they are good against Neisseria gonorrhea and Pasteurella multocida, Borrelia, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, pneumonia, Legionella and Trachomatis। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, अब इनके डिटेल नाम है जो आपने, चूँकि आप माइक्रोबायोलॉजी साथ साथ पढ़ रहे हैं, इन सब के नाम आपको आते ही होंगे, लेकिन थोड़ा मेमोराइज करना है कि एरिथ्रोमाइसिन किन को कवर करें। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के जो 4 मैकेनिज्म हैं विद ऑल मैक्रोलाइट्स, ठीक है, सेम है, चारों जो मैक्रोलाइट्स हैं उनका सेम मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ इफ्लक्स पंप, जो कि एक एक्टिव पंप मैकेनिज्म होता है विच विल इफ्लक्स आउट द एंटीबायोटिक फ्रॉम द सेल। ठीक है, फिर सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट है कि मिथाइलेज एंजाइम प्रोडक्शन होती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which leads to the ribosomal modification, जहाँ बाइंडिंग साइट होती है at the 50S राइबोसोम, उसको ये बाइंडिंग साइट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड do not let the macrolide to bind with the 50S राइबोसोम। थर्ड ये है कि कुछ जो बैक्टीरिया है लाइक एंटेरोबैक्टीरिया, दे प्रोड्यूसेस एस्टरेजेस एंड काइनेजेस एंड दे कॉज द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस या उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं मैक्रोलाइड्स को, and there is an addition of 50S ribosomal protein by chromosomal mutation। इसको आप कह सकते हैं कि चाहे वो प्लाज्मिड ओरिएंटेड भी हो सकती है, क्रोमोसोमल लिंक्ड म्यूटेशन हो सकती है एट द 50S राइबोसोमल प्रोटीन, तो वहाँ पे फिर ये बाइंड नहीं करेगी मैक्रोलाइड। स्पेशली जो बैक्टीरिया हैं जो कि इसको म्यूटेशन कर सकते हैं, वो बेसिलस सबटिलिस, कंपाइलोबैक्टर एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, यूजेस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, जितने भी मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रम बताया है उनसे जो जो डिजीज होगी लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है, उसमें लेजियोनेरिस डिजीज जो कि लेजियोनेला कॉज करता है। लेजियोनेला स्पेशली जो ये वाटर शावर होते हैं उनमें ये कॉलोनाइज कर जाता है, और समटाइम शावर लेने से ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैन बी इनहेल्ड एंड कैन कॉज सिवियर निमोनिया। ठीक है, एंड इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज दिस एरिथ्रोमाइसिन। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिप्थीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, और पर्टूसिस, इसमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑल द स्ट्रेप्टोकोकल, कंपाइलोबैक्टर, टेटनस, इन सब में ये एरिथ्रोमाइसिन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेनिसिलिन। ठीक है, प्रोफिलैक्टिक यूज क्या होता है कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन आप प्रोफिलैक्टिकली दे सकते हैं, और जस्ट लाइक जैसे आप बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं इन द टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर और टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। और आपको मैंने बताया था जब मैंने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ाए थे कि रूमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है,
लाइक आर्थराइटिस हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, और उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास इरिथ्रोमाइसिन है। अगर पेशेंट उसको सेंसिटिव है तो आप ये इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्लाइथ्रोमाइसिन है, ये जो है इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। दूसरा ये इरिथ्रोमाइसिन से ही स्टेम इसकी सिंथेसाइज की गई है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द इरिथ्रोमाइसिन बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप क्लाइथ्रोमाइसिन इज सिंथेसाइज्ड। और ये अबाउट 40-50 इयर्स आफ्टर द इरिथ्रोमाइसिन ये सिंथेसाइज हुई थी, क्लाइथ्रोमाइसिन और दूसरी जो है एजिथ्रोमाइसिन। स्पेक्ट्रम सिमिलर टू इरिथ्रोमाइसिन, जो एडिशनल मैंने आपको बता दिया था कि इट इज मोर एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी एंड एच पाइलोरी एंड लाइम डिजीज। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एटिपिकल ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में क्लाइथ्रोमाइसिन का नाम है, ठीक है, क्योंकि आपको एटीटी पढ़ाए जा चुके हैं, तो आपने जो सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्लाइथ्रोमाइसिन का नाम देखा होगा। जो एटिपिकल, और ये आपका सवाल यूएचएस में आ चुका है लास्ट टाइम, जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है उनकी ड्रग क्या क्या ड्रग ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसमें एक क्लाइथ्रोमाइसिन है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रेसी कॉज करती है। फिर आपने जीआईटी में भी पढ़ा होगा कि जो हम रजीम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर टू इरेडिकेट द एच पाइलोरी, उसमें भी क्लाइथ्रोमाइसिन जो है अलॉन्ग द पीपीआई आप यूज करवाते हैं, ठीक है। लाइम डिजीज जो कि टिक बाइट बॉर्न इन्फेक्शन है, जिसमें बोरेलिया एक बैक्टीरिया होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें फीवर और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाती है और रैशेस बन जाते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक सेम है जैसे रिथ्रोमाइसिन का हमने डिस्कस की, बट इसमें ये है कि ये एसिड स्टेबल है और जीआईटी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके लिए कोई आपको इंटायरिक कोटिंग टैबलेट्स देनी नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म भी अवेलेबल है, जिसमें 1 ग्राम की टैबलेट्स होती है जो कि आप सिंगल डोज में देते हैं, जो कि 24 आवर रिलीज होती रहती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है रैपिड है, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इन सबके साथ ही थोड़ा बहुत है। एंड मैंने जैसे शुरू में बताया था कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि 14 हाइड्रोक्सी क्लाइथ्रोमाइसिन होता है। और ये दोनों जो हैं दे आर वाइडली, यानी कि एक्चुअल क्लाइथ्रोमाइसिन एंड एक्टिव मेटाबोलाइट्स, बोथ ऑफ दीज distributed widely throughout the body, ठीक है, and they achieve high intracellular concentration and tissue concentration usually exceed serum concentration। इसका भी ये है कि चूंकि ये सेल्स के अंदर चली जाती है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर चली जाती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है एट द लेवल ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे टिश्यू में इन्फेक्शन है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अचीव हो जाएगी, एंड इट विल बी मोर देन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। एलिमिनेटेड बाय रीनल एंड नॉन रीनल मैकेनिज्म। मेनली तो ये बाइल के थ्रू और लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद इन द यूरिनम ये एक्सक्रीट होगी, और कुछ लार्ज अमाउंट इसकी जो है वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होते हैं इन द चेंज एंड अनचेंज फॉर्म, बट इवन देन डोज नीड नॉट टू बी अल्टर्ड इन सिवियर रीनल कंडीशन, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेज इसके पहले तो वही सेम है जो कि जो कि रिथ्रोमाइसिन के हैं, बट एडिशनल it is also used for the Helicobacter pylori infection, the peptic ulcer caused by H pylori। फिर जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेटनस एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइरोकीट इन्फेक्शन, जिसमें ये सिफिलिस आ जाता है, तो पाइलोबैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, ठीक है। स्कारलेट फीवर भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, और स्टैफ इन्फेक्शन, लेजुनेला इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, ये सारे वही यूज हैं जो कि रिथ्रोमाइसिन के। एडिशनल वही था जो मैंने बता दिया, जो लेप्रा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस यही था कि इट इज लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, और बाकी सारे इसके इफेक्ट्स सिमिलर हैं लाइक रिथ्रोमाइसिन, बट मोर एक्टिव अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा एंड कैम्पाइलोबैक्टर
and Moraxella catarrhalis, Plasmodium multocida, ठीक है, इस सब में ये आ रहा होता है। इसके अलावा Legionella pneumophila and Borsiella Godfrey and Fusobacterium and Neisseria gonorrhea। तो ये इनके अगेंस्ट इसका इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। It also has a additional activity against Mycobacterium avium intercellular and some protozoal infection like Toxoplasma gondii, जो कि मैंने बताया था कि बल्कि excellent action against Toxoplasma gondii, even it kills the cyst। और Cryptosporidium and Plasmodium infection के against भी azithromycin का रोल है। फार्माकोकाइनेटिक सेम मैंने आपको जैसे बता दी थी कि ओरली आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वेल एब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, और वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट इफ इट इज गिवन विद द एंटासिड्स एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे कैन इंटरफेयर इट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी थोड़ी सी यूनिक इसलिए है कि इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई ड्रग कंसंट्रेशन विद इन सेल, ठीक है। मैंने बताया था जैसे लिपोसाइट्स and phagocytes, the results in much greater tissue are at the secretion concentration about 1 in 1000 की रेशो में, यानी कि ये 1000 टाइम मोर concentration is achieved at the level of the tissue rather than plasma, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फिर आप प्लाज्मा से असेस नहीं कर सकते। That's why its single dose is sufficient for the infection like rectal infection and cervical infection, क्योंकि वहाँ पे ये मैक्सिमम इसका लेवल जो है अचीव हो जाता है और ये कंसंट्रेट कर जाती है, ठीक है। एंड टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट एक्ट एज अ नेचुरल रेजर्वॉयर ऑफ द ड्रग, ये क्योंकि वहाँ स्टोर हो जाती है, दैट्स व्हाई इसकी ड्रग जो है वो इजीली फेगोसाइट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। प्रोटीन बाइंडिंग इज लो, इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये भी सारी जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इसकी एलिमिनेशन इन सब की हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से होती है एंड इट कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। ओनली 12% ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। रिगार्डिंग इट्स क्लेमाइडियल थेरेप्यूटिक यूजेस, तो मेनली जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, और स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन इज specifically recommended as an alternative to the doxycycline, ठीक है। ये डॉक्सीसाइक्लिन हम टेट्रासाइक्लिन की हेडिंग में पढ़ेंगे, और टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, लेकिन वहाँ पे आप जो है अल्टरनेटिव अगर देनी पड़े तो एजिथ्रो इज अ अल्टरनेटिव ड्रग एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ठीक है। and especially with the uncomplicated urethral, endocervical, rectal and epididymal infections। ये सारी infections वो हैं जो वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जो है इतनी ज़्यादा अचीव नहीं होती, बट ये जो एजिथ्रो की चूँकि हमने देखा कि ये टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट और फेगोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में एज ए रेजर्वायर एक्यूमुलेट हो जाती है, so it get its higher and maximum concentration at the level of these tissue, ठीक है। इसलिए इसके ये बहुत इफेक्टिव है इन डिजीजेस के लिए या इन इन्फेक्शंस के लिए। सॉरी, pneumonia caused by chlamydial pneumonia microorganism, it is also a very best antibiotic। Similarly, for the treatment of diphtheria, erythromycin is more effective, but azithro can be used, ठीक है। Azithro and clarithromycin are first line of therapy against prophylaxis and the treatment of disseminated infection caused by Mycobacterium avium intracellular in AIDS patient, ठीक है। ये जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि जो सेकेंड लाइन ड्रग्स आती हैं जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हैं जिसमें ये एवियम इंटरसेलुलर आ जाता है, और जिसमें फिर आप ये क्लाइथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों जो है आप यूज करवा सकते हैं, ठीक है। अदर इन्फेक्शन है कि जैसे कोई प्रोफाइलेक्टिक आपने यूज करवाना हो फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस एन्सेफलाइटिस एंड डायरिया ड्यू टू द क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब एडवर्स इफेक्ट्स मैंने स्टार्ट में जैसे बताया था, एक तो जीआईटी डिस्ट्रेस इनके साथ सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि इनकी ये लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, इनकी थोड़ी इंटरहेपेटिक साइक्लिंग होती है जिससे इनका लेवल इन द प्लाज्मा इज लिटिल बिट हायर,
and that's why they produces nausea, anorexia, vomiting and diarrhea. ठीक है. और लिवर टॉक्सिसिटी नॉर्मली तो ये सारी सेफ ड्रग्स हैं, बट इनमें से जो रिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट फॉर्मुलेशन है, if it is given it can sometimes cause hypersensitivity reaction and allergic reaction and can produce the acute cholestatic jaundice, hepatitis, fever and impair the liver function. ठीक है. तो ये एक आपको समटाइम MCQs में भी ये आ जाता है. जो रिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट साल्ट प्रिपरेशन है, इट कैन कॉज एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस. ठीक है, जिससे जॉन्डिस भी हो जाएगा, फीवर हो जाएगा और LFTs जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इनके साथ रेयर है, बट ये जो रिथ्रोमाइसिन की कुछ प्रिपरेशन है, इनके साथ फीवर, इओसिनोफिलिया और स्किन इरप्शन हो सकती है. कार्डियक में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो रिथ्रो है और क्लैरिथ्रो है, दे have been reported कि they cause cardiac dysrhythmia. उसकी रीजन ये है कि ये QT prolongation करती हैं and but not by azithro. ये डिफरेंसेस, अब ये सारे सवाल अगर आपसे आप पूछे जाएं तो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये अब आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ सारे, और अगर आपको डिफरेंसेस लिखने पड़े तो आप उसको कर सको. ट्रांजिएंट ऑडिटरी इम्पेयरमेंट कैन अकर विद द IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिथ्रोमाइसिन. ठीक है, उसके साथ समटाइम जो है अगर IV आप रिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन दें तो उस पर टेम्परेरीली एक जो है ऑडिटरी इम्पेयरमेंट आ जाती है. रीज़न इसके भी कोई क्लियर नहीं है. रिथ्रो एंड क्लाइथ्रो बोथ दे इनहिबिट्स द P450 cytochrome 3A4 drug. That's why can cause the increased level of drugs like statins and colchicine वगैरह. और एक ये भी कहा जाता है कि when the erythromycin is given for a longer period, about 2 weeks, it can cause the pyloric stenosis in the infants. तो ये भी इसके adverse effects. फोर्थ जो मैक्रोलाइट्स है हमारे पास टेलिथ्रोमाइसिन है. इस स्ट्रक्चर की डिफरेंस की वजह से इसका नाम टेलिथ्रो रखा गया. सेम 14 मेंबर्ड रिंग है, बट इट हैज अ 3 कीटो ग्रुप फॉर न्यूट्रल शुगर क्लैडिनोस. ठीक है, जहाँ पे क्लैडिनोस अटैच था विद रिथ्रोमाइसिन, वहाँ पे 3 कीटो ग्रुप अटैच कर दिया गया, जिससे इसकी स्पेक्ट्रम में भी चेंज आ गया थोड़ा बहुत. वैसे तो सेम है लाइक रिथ्रोमाइसिन, बट इसमें कुछ जो मैक्रोलाइट रेजिस्टेंस चेंज हैं दे आर वल्नरेबल. ठीक है, और वो इसी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की वजह से क्योंकि ये दे डेवलप एबिलिटी टू रेजिस्ट इफ्लक्स पंप, इनके अगेंस्ट इफ्लक्स पंप रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बाकी ये सेम है, इसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन जस्ट लाइक जो बाकी 3 मैक्रोलाइट्स हैं उसी तरह ये लिवर में ही मेटाबोलाइज होती है. ठीक है, और इंडिकेशन जो इसके यूजेस हैं मेनली फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया है, एक्यूट ऑन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस. एंड एडवर्स इफेक्ट्स में इसके कार्डियक इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड लाइक रिथ्रोमाइसिन, यानी ये क्यूटी प्रोलॉन्ग ये भी करती है और साथ एरिथमियास कॉज कर सकती है. अदरवाइज बाकी इनके सारी जो स्पेक्ट्रम, फार्माकोकाइनेटिक्स और यूजेस ऑलमोस्ट सेम एज अदर मैक्रोलाइट्स. क्लिंडामाइसिन इज नॉट अ मैक्रोलाइट्स. इसको मैंने स्लाइड में इसलिए डाला है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम है जैसे मैक्रोलाइट्स है, यानी कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन स्टेप को ब्लॉक करती है. और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी सेम है, जैसे कि मैक्रोलाइट्स के अगेंस्ट 4 मैकेनिज्म जो थे, क्या क्या थे, इफ्लक्स पंप की डेवलपमेंट और मिथाइलेस एंजाइम जो कि वहाँ बाइंडिंग साइट को चेंज कर देता है. फिर इसके अलावा स्ट्रेजेस हैं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, वो उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं. ठीक है, और फोर्थ ये है कि पॉइंट म्यूटेशन एट द बाइंडिंग साइट 50S वहाँ पे वो हो जाता है. फार्माकोकाइनेटिक इसकी जो है सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी इंट्रासेलुलर ल्यूकोसाइट्स सब में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक्सेप्ट इन द ब्रेन. ठीक है, तो चारों मैक्रोलाइट्स प्लस ये जो क्लिंडामाइसिन है ये ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी. दैट्स व्हाई आप मेनिंजाइटिस में इसका कोई रोल नहीं आता. और एडवर्स इफेक्ट में भी वही GIT डिस्टर्बेंसेस सबसे ज़्यादा है,
और लीथल कंडीशन जो क्लिंडामाइसिन, चूँकि लास्ट टाइम पेपर में इस पे सवाल आ चुका है, तो इसका आपको ये याद रखना है कि जो इसका स्पेक्ट्रम है, स्पेशली जो स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, उसके लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक जगह है और इसकी पेनिट्रेशन वहाँ पे बहुत बेस्ट है। दैट्स व्हाई जो बोन और जॉइंट्स की इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए आप क्लिंडामाइसिन देते हैं। वहाँ मैक्रोलाइट्स जो हैं वो वहाँ पेनिट्रेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और जो टॉपिकल कुछ स्किन इन्फेक्शन हैं लाइक स्टेफ्लोकोकल कंजक्टिवाइटिस, उनके लिए भी ये क्लिंडामाइसिन जो है इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। और सबसे ज़्यादा इसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है दैट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और आपको बताइए क्या होता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस? इट इज़ अ जो कह सकते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है बाय द यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल की ओवर ग्रोथ हो जाती है इन द large intestine and it causes acute inflammation of the colon and diarrhea and severe abdominal distension and pain. तो फॉर दैट वी गिव देन मीटोनिडाजोल एंड वेनकोमाइसिन, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं वाइवा में, खासतौर पे अगर स्यूडोमोनास कोलाइटिस के लिए कौन सी ड्रग देनी है आपने, और स्यूडोमोनास कोलाइटिस होता क्या है ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है।